Welcome students. Welcome again to the class of investment analysis, and we will be further discussing the unit 3 of this subject. Okay, in unit 3 we are discussing security pricing, and I'm your faculty, Dr. Ritu Singh. Okay, so in lectures before this, with previous lectures, we have discussed the security valuation in India, then factors affecting the security valuation, and we have discussed bond valuation in last lecture also. In today's lecture, we are going to discuss about the dividend discount model. Okay, what is dividend discount model, how it affects the valuation of the securities and the bonds, and then we have to further discuss the two types of dividend discount models which are generally used in different organizations. Okay, so we'll start with the chapter. So security valuation we studied, four important um, words or terms related to it: book value, liquidating value, intrinsic value, and replacement value. Then market price of the bond, how it is determined. Then what are the factors which affect the security valuation? It was regular dividend or interest or capital gain or losses. Then other was demand, supply, bank rate, market players, dividend announcement, management profile, trade cycle, speculation, political factors, and industrial relations. Stability of government, general market sentiments, actions of investors, and level of foreign investment, returns offered, credit availability, and effective regulation. Then security valuation in India is governed by CCI, Competitive Commission of India. Then we discussed the Graham's approach of valuation and its Gordon growth model. And then in last lecture we discussed the bond valuation. Then that how it is affected and how it ensures that a person or an investor should include some certain bonds in their portfolio. Okay, so in today's chapter, or we can say in today's lecture, we are going to discuss the dividend discount model. Okay, so dividend discount model is like that in with every investment or every security and every bond you receive either interest or a dividend. What is the present value of that interest is going to be for, and how it is going to affect your income statement. So here we are discussing the dividend discount model. So what does this dividend discount model state? The dividend discount model is a quantitative method used for predicting the price of a company's stock based on the theory that its present day price is worth the sum of all its future dividend payments. Okay, so whenever we are investing, what we are most concerned about is that whatever money we are investing, जो पैसा आज हम लगा रहे हैं, क्या उस उसका एक वर्थ वाइल अराउंड या वर्थ वाइल अमाउंट हमें वापस मिलेगा कि नहीं. Okay, our basic intention, basic objective of any investment is that we make profit on that. Profit is the foremost requirement of any investment. Okay, so we have to make sure that whatever investment we are making, they are giving us enough dividends, and those future dividend payments worthwhile or proves the worth of present day price. यानी कि अगर हम किसी भी शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स हमें मिलने वाली हैं, जो हमें प्रॉमिस किया जा रहा है, या मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उसको एस्टिमेट कर पा रहे हैं, तो वो जो डिविडेंड पेमेंट्स है, आप जो आपके प्रेजेंट प्राइस को, जो प्रेजेंट डे प्राइस जो आप आज पे कर रहे हो सिक्योरिटी के लिए, उसको जस्टिफाई करें. ओके, सो it attempts to calculate the fair value of stock irrespective of the prevailing market conditions and take into consideration the dividend payout factors and market expected returns. Okay,
So if the value obtained from dividend discount model is higher than the current trading price of shares, then the stock is undervalued and qualifies for a buy, and vice versa. Okay. So what does this statement talks about? What does this statement proves? Ki if whenever we are investing, then we have to calculate the present value of future dividends. Okay, that means जो भी हमें एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न्स मिलने वाले हैं, या कंपनी हमें जो भी डिविडेंड पे आउट करने वाली है, अगर वो हमारे रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को पूरा कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए उसको पूरा कर रहे हैं, तो हम कंसिडर करते हैं कि हम ये स्टॉक खरीदेंगे. और अगर जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे जो करंट प्राइस ऑफ शेयर्स मार्केट में है, अगर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हायर आ रहा है, यानी कि करंट प्राइस से हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का आंसर हायर आ रहा है, तो हम परचेज करेंगे स्टॉक को. इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है. करंट ट्रेडिंग अगर जो हमारा आंसर आ रहा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का, जो भी वैल्यू हमारी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आ रही है वो करंट ट्रेडिंग प्राइस या मार्केट प्राइस से हायर है, तो इसका मतलब कि मार्केट में सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है. और अगर कम आ रही है तो यानी कि मार्केट में सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है. तो जब सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड होती है तो हम बाई करते हैं, और सिक्योरिटी अगर ओवर वैल्यूड होती है तो हम सेल करते हैं. ओके, सो let's make sure that we understand this dividend discount model. We are all aware that every company produces goods and offers services in order to earn profits. The cash flow earned from such business activities determines its profit, which gets reflected in the company's stock prices. So, company makes dividend payments to their stockholders, which usually originates from business profits. The dividend discount model is based on a theory that the value of a company is the present worth of the sum of all its future dividend payments. तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये अज्यूम करता है कि फ्यूचर में कंपनी जो भी पेमेंट्स देने वाली है, डिस्काउंट्स देने वाली है, डिविडेंड्स देने वाली है, इंटरेस्ट देने वाली है, उसके बेसिस पे हम कंपनी की प्रेजेंट वर्थ डिटरमाइन कर सकते हैं. यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होता है दैट इज़ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव गिवन सम 100 रुपीज़ टू योर फ्रेंड एज इंटरेस्ट फ्री लोन, तो अगर आपको कुछ समय बाद अपने दोस्त से पैसा वापस मिलता है तो वो 100 रुपये ही वापस मिलेगा और आपको कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं मिल रहा है. बट जब आपका फ्रेंड आपको पैसा वापस देने आ रहा है, वो आपको अगर 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप 100 रुपीज़ आज ले लीजिए या फिर 100 रुपीज़ 1 साल बाद ले लीजिए, तो आपकी पहली चॉइस ये होगी कि आप आज की ही डेट में वो 100 रुपीज़ लेना पसंद करेंगे. क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट परचेजिंग पावर होती है हमारे मनी की वो ज़्यादा होती है. सो वी propose that we receive the 100 rupees as soon as possible on the earliest possible date. आपको वो जो 100 रुपीज़ मिलेंगे आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको कुछ एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपका मनी ग्रो कर जाएगा. बट अगर आपका फ्रेंड आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि वो 1 साल बाद देगा, तो आपको नहीं पता कि ये जो 3 या 4% का इंटरेस्ट रेट है सेविंग्स बैंक अकाउंट का, वो आप तब बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे. ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आइदर आपका फ्रेंड और आइदर यू रिसीव योर 100 रुपीज़ टुडे so that you can invest it or spend it accordingly, or if your friend is giving you money 1 year after, तो वो जो उसकी वैल्यू है, जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप आज जो लेट गो कर रहे हैं वो उसको पूरा करके आपको दे. तो आप सभी को फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद होगा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने कई बार पढ़ा है, कई बार डिस्कस किया है, दैट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r पावर n, या फिर कहते हैं 1 + इंटरेस्ट रेट पावर n, यानी कि और द नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, सो दैट दिस एग्जाम्पल प्रूव्स दैट मनी वैल्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम. पैसे की वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट है, हम उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंडेंट है. ओके, तो वी कैन समराइज हियर
we can summarize here that money value is dependent on time. Okay, so when we look at it, then present value or present worth of some investment is more important. So when you rearrange the equation, तो उस केस में आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r पावर n. ओके, सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूजेस दिस प्रिंसिपल. ये प्रेजेंट वैल्यू के इस प्रिंसिपल को यूज करता है. ओके, so it says that dividend discount model says, and it uses its principle that it takes the expected value of the cash flow of company that it will generate in future and calculates the net present value drawn from the concept of time value of money. Essentially, the dividend discount model is built on taking the sum of all future dividends expected to be paid by the company and calculating the present value using a net interest factor, also called discount rate. तो जिस तरीके से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कैपिटल बजटिंग में फ्यूचर वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते थे, जिसे हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नेट इंटरेस्ट फैक्टर भी कहते हैं. ओके, तो हम डिस्काउंट रेट अप्लाई करते हैं कि फ्यूचर में इस रेट पे वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ होगी, तो हमें जो फ्यूचर पेमेंट मिल रही है क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं. तो हमें यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स. So let's come to the topic, or let's come to the point where we are talking about expected dividends. So estimating the future dividends of a company is a complex task. फ्यूचर में हमें क्या पेमेंट मिलने वाली है इसको डिटरमाइन करना कभी भी ईजी नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ गवर्न बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन फैक्टर्स. कुछ सर्टेन फैक्टर्स है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो यू डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यूज़. So estimating a future dividend of a company is a quite complex task. That is why analysts and investors may take certain assumptions and try to identify trends based on past dividend payment history to estimate the future dividend. तो हम हिस्ट्री का यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा या पास्ट डेटा का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि पास्ट में अगर ये ट्रेंड था तो आगे क्या ट्रेंड रहेगा. So one can assume that company has a fixed growth rate of dividends until perpetuity, which refers to the constant stream of identical cash flows for an infinite amount of time with no end date. Okay, I'll repeat again. One can assume that a company has a fixed growth rate of dividends until perpetuity, which refers to a constant stream of identical cash flows for an infinite amount of time. तो हम ये मान के चल रहे हैं कंपनी जो है परपेचुटी तक काम करने वाली है, यानी कि इन्फिनाइट टाइम पीरियड के लिए काम करने वाली है, और वो एक आइडेंटिकल कैश फ्लो उस समय तक बिना एंड डेट के इन्वेस्टर को देती रहेगी. ओके, सो इफ अ कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 per share this year and is expected to maintain a 5% growth rate for it, then the next year dividend payment is going to be 1.05. तो अगर कंपनी इसने इस साल ₹1 पर शेयर पे डिविडेंड दिया है और हर साल ये रिकॉर्ड रहा है कंपनी का कि उसके शेयर प्राइसेस पे और डिविडेंड प्राइसेस पे 5% का ग्रोथ रेट लगता है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगले साल का नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है दैट इज़ गोइंग टू बी 1.05 rupees. Alternatively, if one spot a certain trend, like a company making dividend payments over the last 4 years, different dividend payments of ₹2, then 2.5, then 3, 3.5 over the last few years, then we can assume that the next year payment is going to be 4. Okay. अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहे हैं, दूसरे एग्जांपल में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि हर साल 50 पैसा डिविडेंड पर शेयर बढ़ा रही है कंपनी, तो पहले साल पेमेंट दो रुपये थी, नेक्स्ट ईयर 2.5 रुपीज़, नेक्स्ट 3 रुपीज़, नेक्स्ट 3.5 रुपीज़. तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगले साल का जो डिविडेंड पेमेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 4 रुपीज़. तो
ये जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, दिस एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज रिप्रेजेंटेड एज डी. तो अब इस डिविडेंड पे हम एक डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं. ओके, so when we are talking about the discounting factor here, so we can see that the shareholders who invest their money in a stock take a risk as their purchase stock may decline in value. एक कोई भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक तरह से रिस्क ले रहा है कि उसने पैसा लगाया है स्टॉक्स में, वो दैट मनी कैन बी लॉस्ट ऑल्सो एंड दैट मनी कैन क्रिएट अ प्रॉफिट ऑल्सो, एंड ही इज़ टेकिंग रिस्क फॉर दिस रिटर्न. उसको जो कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, फ्यूचर कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, उस पर रिस्क ले रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर कॉम्पनसेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा. ओके, so against this risk they expect a return in compensation similar to a landlord who is renting out his property for a rent, because every one of us or every investor is trying to make some profit. Okay, so a firm cost of equity capital represents the compensation the market and investors demand in exchange for owning the asset and bearing the risk of ownership. This rate of return is represented by R and can be estimated using capital asset pricing model. तो हम capital asset pricing model और dividend growth model हम इस पे लगाते हैं इस discount rate को determine करने के लिए, estimate करने के लिए. However, this rate of return can be realized only when investor sells his shares. So, this required rate of return can vary due to investor's discretion. तो अब जो एक इन्वेस्टर है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है. अगर इन्वेस्टमेंट आप हमारा रिस्क अवर्स है, रिस्क लेना नहीं पसंद करता है, एंड ही वांट्स टू प्ले पेशेंटली विद हिज इन्वेस्टमेंट्स, और वो ये मान के चल रहा है कि उसको एटलीस्ट 10% रिटर्न चाहिए अपनी सिक्योरिटीज़ पे, इन्वेस्टमेंट में से 10% चाहिए, तो वो उसी सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो उसको 10% से ज़्यादा का रिटर्न देंगी, बिकॉज ही इज़ सपोज टू मेक एटलीस्ट 10% ऑफ रिटर्न. ये उसका गोल है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए, इस गोल को डिटरमाइन करने के लिए और उस गोल से एक्चुअल शेयर की रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम फॉर्मूला किसका यूज़ करते हैं? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. ओके, सो कंपनीज that pay dividends do so at a certain annual rate which is represented by G. यहाँ पे जो G है हमारा ग्रोथ रेट है, the rate of return minus the dividend growth rate. जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उससे हम ग्रोथ रेट को माइनस कर देते हैं, जो कि एक अफेक्टिव डिस्काउंटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है उस सिक्योरिटी के लिए. द डिविडेंड इज पेड आउट एंड रियलाइज बाय द शेयर होल्डर्स. The dividend growth rate can be estimated by multiplying the return on equity by retention ratio, and the latter being opposite of the dividend payout ratio. So, since the dividend is sourced from the earnings generated by the company, ideally it cannot exceed the earnings, and the rate of return on the overall stock has to be above the rate of growth or of dividends of future years. Otherwise, the model will not sustain and will lead to negative prices, which is not possible in reality. Okay, तो जो required rate of return है उससे हम growth rate को जब माइनस कर देते हैं तो हमें जो फैक्टर मिलता है, जो हमें नंबर मिलता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा अफेक्टिव, इट बिकम्स आर अफेक्टिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसपे हमें कंपनी डिविडेंड मिलने वाला है. एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हमें चाहिए, और एक ग्रोथ रेट है जो कंपनी की डिविडेंड्स पे या कंपनी के सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स पे हमें मिल रहा है. तो ये डिटरमाइन करता है कि अफेक्टिव डिस्काउंट रेट क्या है इकोनॉमी में. ओके, सो when we talk about the DDM formula or the dividend discount model formula, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला डिपेंड करता है दिस एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर और द वैल्यू ऑफ आर स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन द थ्री मेन फैक्टर्स. ओके,
वन इज़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, कितना हमें डिविडेंड मिलेगा. नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी, जो कैपिटल इक्विटी की कॉस्ट क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एंड द डिविडेंड ग्रोथ रेट, यानी कि जो ग्रोथ रेट, डिविडेंड पे ग्रोथ रेट क्या होने वाली है. जो फॉर्मूला हमारा बनता है, फॉर्मूला विल बी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू EDPS divided by CCE and DGR, where EDPS is expected dividend per share, CCE is the cost of capital equity and DGR is the dividend growth rate. So basically ये हमारे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का ही फर्दर एक्सटेंशन है, जहाँ पे हम वैल्यू ऑफ स्टॉक या प्राइस ऑफ स्टॉक को पता कर रहे हैं बाय टेकिंग कंसिडरेशन कि हमें डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और उससे हम ग्रोथ रेट कितना डिडक्ट कर रहे हैं. तो इस केस में भी ग्रोथ रेट हमारा, अब जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ ग्रोथ रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में चला जाएगा और हमारा आंसर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. उस केस में हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि if the investment is fruitful or not. Okay, so since the variables used in formula include the dividend per share and they include the net discount rate, that is the required rate of return, cost of equity and expected rate of growth, they becomes as a certain assumptions, they become the part of certain assumptions. ये वो चीज़ें जो हमारे इन्वेस्टर को हमेशा पता ही रहेंगी. Since dividend and growth rate are key inputs to the formula, डिविडेंड की वैल्यू और उसकी ग्रोथ रेट की इनपुट है हमारे फॉर्मूला में. सो DDM और वी कैन से डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज दैट पे आउट रेगुलर डिविडेंड्स. तो हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल उन्हीं कंपनीज पे लगा सकते हैं जहाँ पे रेगुलर डिविडेंड्स पे किए जा रहे हैं और किसी भी साल में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पेमेंट्स को स्किप नहीं किया गया है. ओके, सो हाउएवर it can still be applied to stocks which do not pay dividends by making assumptions about what dividend they have paid otherwise. Okay, so now there are some variations to dividend discount model also. So what are these variations? Let's discuss that. The DDM has many variations that differ in complexity. While not accurate for companies, the simplest iteration of the dividend discount model assumes zero growth rate in the dividend, in which case the value of stock is the value of dividend divided by the expected rate of return. Okay, तो वेरिएशन इसमें क्या है, कभी कभार कुछ कंपनीज बिना किसी ग्रोथ रेट के अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करती है कई सालों तक. ऐसा तब होता है जब कंपनीज आर इन मेच्योरिटी स्टेज एंड इज नॉट एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस और देयर कंज्यूमर बेस इज नॉट एक्सपेंडिंग. सो उस केस में हम ज़ीरो ग्रोथ रेट अज्यूम करते हैं और जो हमारा सिंपल जो प्राइस आती है, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक आती है, वो कितनी आ जाती है, एक्चुअल डिविडेंड रिसीव डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. वहाँ पे जी जो होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. वी कैन सी हियर द formula here that we have written here. The formula is given here that price per share becomes is equals to D divided by R minus G, और यहाँ पे जो G है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है. That means only R is affecting the price per share or value of a stock. So the most common and straightforward calculation of a DDM is known as Gordon growth model. तो जो हम पढ़ चुके हैं, तो जो इसका जो मोस्ट कॉमन एजम्पशन है, जो मोस्ट कॉमन कैलकुलेशन है, वो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के थ्रू होती है, विच एज्यूम्स अ स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ. वो एज्यूम करता है कि डिविडेंड की ग्रोथ स्टेबल रहेगी. और दिस गॉर्डन ग्रोथ मॉडल वॉज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मायरन जे गॉर्डन. इन्होंने ही ये मॉडल बनाया था. ही एज्यूम दैट देयर इज अ स्टेबल ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर इन डिविडेंड्स. So we take three assumptions in this formula. First is the D is equals to estimated value of next year dividend. R is the company cost of equity, and G is the constant growth rate up till perpetuity. Okay. The third variant exists as a supernormal dividend growth model, which takes into account the period of high growth followed by the lower.
एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ पीरियड। तो ये जो थर्ड वेरिएंट है, यानी कि जो हमारा जी है, जो हमने ग्रोथ रेट लिया है, ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है। ये कभी हाई ग्रोथ में भी रहेगा, अगर कंपनी डेवलपमेंट फेज़ में है तो वो हाई ग्रोथ पे जा सकता है, अगर कंपनी डिक्लाइन फेज़ में है तो लो ग्रोथ में जा सकता है या नो ज़ीरो ग्रोथ पे जा सकता है, एंड इट कैन रिमेन कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑल्सो फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. Okay, so during a high growth period, one can take each dividend amount and discount it back to the present period. And for the constant growth period, the calculation shows the Gordon growth model. Okay, high growth period है, यानी कि probably आपकी कंपनी का एक्सपेंशन फेज चल रहा है एंड सक्सेसफुल एक्सपेंशन फेज चल रहा है, तो हम अपनी फ्यूचर वैल्यूज़ को डिस्काउंट करते हैं. अदरवाइज कांस्टेंट ग्रोथ पीरियड के केस में हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल अप्लाई करते हैं. ओके, so now here we have an example of Gordon growth model, dividend discount model also. Here we can see that a company is paying 1.8 rupees per share this year, and it is going, we assume the company expects or assumes that dividend is going to grow at perpetuity 5% per year. Okay, और कंपनी की जो इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 7%. तो जो हमारा कैलकुलेशन आएगा, जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आएगा, वो कितना आएगा, 1.8 इंटू 1 प्लस जी. हम सिंपल डी का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले साल का जो हमारा डिविडेंड है वो 1.8 है, उसमें हमने 1 प्लस जी यानी कि 5% से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे नेक्स्ट ईयर का जो कैलकुलेशन है वो 1.89 रुपीज़ हो जाएगा. फिर इसमें जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम इस 1.89 को 7 माइनस 5% से डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 94.50. दैट मीन्स अगर हमें नेक्स्ट ईयर 1.89 का डिविडेंड मिल रहा है, उसमें हम 7% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगा रहे हैं और 5% का ग्रोथ रेट लगा रहे हैं, तो हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है दैट इज़ 94.50 रुपीज़ हो जाएगी. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द DDM or we can say dividend discount model, while the Gordon growth model method of DDM is widely used, it has two shortcomings. Okay, पहली शॉर्ट कमिंग यह है कि वी आर अज्यूमिंग दैट कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टू परपेचुटी फॉर इन्फिनाइट टाइम पीरियड ऑफ टाइम. हम लोग कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ को कंसिडर कर रहे हैं, बट जो कि डिफर कर सकती है. अच्छे एक्सपेंशन फेज़ में, प्रॉफिटेबल फेज़ में आपका जो क्या कहते हैं ग्रोथ रेट है वो बढ़ सकता है, डिक्लाइन फेज़ में गिर सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और मैच्योरिटी फेज़ में ज़ीरो भी हो सकता है. ये अजम्पशन हम मैच्योर कंपनीज के लिए कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट मैच्योर कंपनीज भी कभी कभी कई सारे मिसहैप्स और मार्केट रिस्क बियर करती है. दूसरा जो इशू है वो है इनपुट्स को लेके है, और हम वो सेम इशू जो है वो है आपका ग्रोथ रेट के साथ. अगर ग्रोथ रेट की वैल्यू आपके आर की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आने लगता है. So this is the shortcoming of this dividend discount model, and then we use dividend discount model for the various investments. तो अभी हमारे पास यही एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक इंट्रिंसिक प्रोग्राम है जहाँ पे हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो this dividend discount models help so many investors to determine that what investment they need and what investment they need to do. Okay, so all these DDM variants, especially the Gordon growth model, allow valuing a share exclusive to the current market conditions, and it also aids the making direct comparisons against companies. तो इसमें जो हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट हेल्प अस टू डिटरमाइन करेंट मार्केट कंडीशंस, और दूसरी कंपनी से, हमारे जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उसकी दूसरी कंपनी से भी हमें प्रॉपरली कंपेयर करने का ऑप्शन देता है. सो द इन्वेस्टर्स हु बिलीव इन अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट द प्रेजेंट डे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स कैन यूज इट फॉर आइडेंटिफाइंग
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स, हम ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं अपने स्टॉक्स की. If the calculated value comes to be higher than the current price of share, then that indicates a buying opportunity. कैलकुलेटेड वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब मार्केट में जो सिक्योरिटी है वो अंडर वैल्यूड है, हमें परचेज़ करनी चाहिए. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मार्केट प्राइस से कम आ रही है तो यानी कि मार्केट में जो हमारा शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, तो हमें उसको सेल कर देना चाहिए और परचेज़ तो नहीं करना चाहिए. So, however, one should understand that dividend discount model is another qualitative instrument in the universe or in the field of stock valuation tools. तो इसकी अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं. सो while doing our calculations we should consider those shortcomings also. Okay. सो नेक्स्ट आपका जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, इसके कुछ वेरिएशंस हैं या कुछ टाइप्स हैं, जिसे हम सिंगल पीरियड मॉडल एंड मल्टी पीरियड मॉडल भी कहते हैं. दिस मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सो फॉर दिस क्लास दिस इज इट. दिस वाज द डिस्कशन ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. दिस lecture was prepared by the references from these following books and websites. You all are requested and required to refer to these books for further understanding, and if you have any question you can ask me anytime. Okay, you can ask me on the online platforms, और अगर classes हमारी फिर से शुरू होती हैं तो भी आप मुझसे सारे questions पूछ सकते हैं. Okay, so thank you so much students listening me very patiently. So see you in the next class, and I am looking forward for the next class where we are going to discuss the classification or two different types of dividend discount model, which are single period model and the multi period valuation model. So thank you so much students. Have a nice day ahead.